Hello students, today we are going to start our lecture number 3 for chemical classification and periodic properties. In our previous lecture we have discussed about the atomic radii. There we discussed about the covalent radii and the van der Waals radii. Apart from these, there are two other types of radii also, metallic radii, which is observed in case of metals, metallic bonding mein. And the fourth one is ionic radii. So today we will be discussing about the ionic radii. What is ionic radius और ionic radius का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए for example we are having sodium, its electronic configuration is 281. Now when this atom loses an electron, it changes to sodium ion, which is a cation. Positively charged ion is there, this ion is called a cation. And similarly, if we are having chlorine 287, it take up one electron and changes to a negatively charged ion, that is called an anion. So the ionic radii is radii of these ions. And how we define the ionic radius? Ionic radius is defined as the distance from the center of the nucleus. If it is the center of the nucleus of the ion, then distance from this center of the nucleus up to the point where its force field can be experienced. जहाँ तक ये अपना force exhibit करता है, exert करता है, वहाँ तक के distance को हम ionic radii बोलते हैं. तो ionic radii की definition आपको बता दी. अब इसमें चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि जो ये है कैटायन, आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम, इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, while that of an anion, ionic radius is larger than ionic radius is larger than parent atom. And why it is so? ऐसा क्यों है? तो आप देख सकते हैं, जब आपके किसी नॉर्मल एटम से कोई कैटायन बनता है बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो एक तो फ़र्क क्या होता है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 था, तो इसके अंदर हमारे इनिशियली 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे. 11 प्रोटॉन्स इन दिस सोडियम एटम वर अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, एंड हेयर द 11 प्रोटॉन दे आर अट्रैक्टिंग द 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव रिड्यूस्ड वेयर एज द न्यूक्लियर चार्ज इज सेम, सो योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द रेडियाई ऑफ द cation will be smaller than the parent atom. Second thing, in this particular case, this third energy shell has been completely removed from this ion. ये फर्स्ट एनर्जी शेल है, सेकेंड है, थर्ड है. तो वाई लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दिस थर्ड एनर्जी शेल हैज़ बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, तो उसकी वजह से भी आपका क्या होगा, रेडियस कम हो जाएगा. एनायंस का जो रेडियस है वो हमेशा पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है? यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. हेयर द 17 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग द 18 इलेक्ट्रॉन्स. So the force of attraction will decrease. As a result of that, the ionic radii will increase due to the decreased force on the valence electrons. So now we have discussed about the various type of radii. So discuss about now the next topic is variation of these radii in the periodic table. When we move along a period in the periodic table, or we move down a group in the periodic table, then what happens to the radii of atoms? That is the periodic trend, the variation in periodic table, variation of atomic radii, variation of atomic and ionic radii in periodic table, in periodic table. So first variation is variation in a period. The first is variation in a period.
Period means horizontal row in the periodic table, as we have discussed earlier. So if we consider the second period, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. These are the elements of the second period of the periodic table. तो इसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें in the period, then your atomic radii will decrease. Atomic radii decreases. Now why the atomic radii of these elements are decreasing on moving from left to right is, if we move along this period, the atomic number is gradually increases by 1. So what happens is, if we write down the electronic configuration, its electronic configuration is 2s1 valence shell में, it is 2s2, it is 2s2 2p1. So what you are observing is that the additional electron is being added to the same principal energy shell. जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन सेम प्रिंसिपल शेल में ऐड हो रहा है. यहाँ पे प्रिंसिपल शेल क्या है? सेकंड. तो सेकंड प्रिंसिपल शेल के अंदर ही पहले 2s1 था, फिर 2s2 हो गया, फिर 2p1 हो गया. तो सेम प्रिंसिपल शेल के अंदर ही हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जबकि न्यूक्लियस के ऊपर द चार्ज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग. सो ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ये हमारा न्यूक्लियस है, this is your second energy shell, electron is being added to this shell, whereas the number of protons in this nucleus is increasing continuously. So if we look at the Coulombic law of force of attraction, then because distance is same, whereas q1, if I call it as q1, then q1 is increasing continuously, whereas the distance remain the same, so force will increase. So as a result of that, these valence electrons, these electrons present in this valence shell, they will be attracted with a greater force. As a result of that, this electron cloud will be slightly pulled inward and resulting into the decrease in the your radius, atomic radius. But you remember that in case of neon, when we move from फ्लोरीन टू नियोन, जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीज ऑब्जर्व होगा आपको. उसके इंक्रीज ऑब्जर्व होने का कारण ये है, ध्यान रखना है यहाँ पे, फ्लोरीन के अंदर वी विल बी कैलकुलेटिंग द कोवलेंट रेडियाई, वेयर एज बिकॉज योर नोबल गैसेज डू नॉट कंबाइन, सो हेयर इन केस ऑफ नोबल गैसेज वी विल बी मेजरिंग द वंडर वॉल रेडियाई, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट दैट द वंडर वॉल रेडियाई आर लार्जर देन द कोवलेंट रेडियाई. So this is the variation in a period. On moving along a period, the atomic radii increases. Now if we talk about variation of atomic radii in a group, अगर हम ग्रुप की बात करें, then atomic radii will increase on moving down a group in the periodic table. To understand this, let us consider the group number first: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, then that is francium, etc. But mainly ये एलिमेंट है, बाकी दोनों रेडियो एक्टिव हैं, उनको हम अलग से ही स्टडी करते हैं. So we are going to discuss about this. Atomic number 3, 11, 19, you are 37 and 55. This is the atomic number. ये मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया पहले ही. अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हीलियम 2s1, यहाँ जाओगे आप नियोन 3s1, क्रिप्टॉन 4s1, यहाँ आर्गोन, हेयर क्रिप्टॉन 5s1, हेयर जीनोन 6s1. तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, नो डाउट. तो सॉरी, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है एटॉमिक रेडियस? क्योंकि हमारा एनर्जी शेल इंक्रीज होता जा रहा है. यहाँ सेकंड एनर्जी शेल बैलेंस था, यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर्थ है, यहाँ फिफ्थ है, यहाँ सिक्स्थ है. सो ईच टाइम वी आर एडिंग ए न्यू एनर्जी शेल. नाउ वन कैन आर्ग्यू कि यहाँ पे
एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि आपका न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे देयर शुड बी इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो द रेडियाई शुड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से डिक्रीज होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, एक चीज़ होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इट इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल शील्ड, शील्ड का मतलब ढक लेगा, कवर कर लेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होता, ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना होता, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस इस पर एग्जर्ट करता, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को जब ये न्यूक्लियस खींचेगा तो कुछ इसका फोर्स इस पे और इस पे, दो पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कह सकते हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ये मैग्नेट है, इसको समझना हो आप घर पे करके देख सकते हैं मैग्नेट से इसको। ये हमारे पास मैग्नेट है, यहाँ पे आप कोई लोहे का पीस रखिए एंड ऑब्जर्व द फोर्स। आप इसको होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं इस लोहे के पीस को, और यहाँ एक मैग्नेट लेके आए तो आपको एक फोर्स जो महसूस हो रहा है उसको आप अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें, आप यहाँ पे एक आयरन की स्ट्रिप डाल दें बीच में, इस आयरन के पीस और इसके बीच में क्या डाल दें, एक आयरन की स्ट्रिप डाल दें, और अब देखें कि अब इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है। तो आप महसूस करेंगे कि जब ये आयरन की स्ट्रिप नहीं थी तो इस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा था, जब ये आयरन की स्ट्रिप डाल दी तो ये फोर्स कम हो गया। इट मीन्स जो इंटरवीनिंग ये थी प्लेट आयरन की, उसने क्या कर दिया, इस आयरन के पीस को शील्ड कर दिया मैग्नेट से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे बीच में, दे विल डिक्रीज द चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस। और इस पे जो जेड इफेक्टिव आता है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन शेल, दैट विल बी गिवन बाय जेड माइनस सिग्मा, वेयर दिस सिग्मा इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इन द इनर शेल, वैसे वैसे आपका जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से, ये डिक्रीज होने की वजह से, सिग्मा बढ़ने की वजह से जो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है और इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, काउंटर बैलेंस कर लेंगे, एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। तो आपका नीचे जाने पे रेडियाई क्या होगा, वो किसी भी ग्रुप में इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अगर हम ग्रुप नंबर 13 में जाएं और उसमें हम अगर यही चीज़ देखें कि व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 13, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, हम यहीं तक डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी हम क्या है कि नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, बट रिमेंबर दैट जब आप एल्युमिनियम से गैलियम पे जाते हैं, देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस घटेगा बजाय बढ़ने के। उसका कारण यही है कि एल्युमिनियम, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम 31, अगर हम बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन। एल्युमिनियम की लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गैलियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, सॉरी इसके 31 पूरे करने हैं, 3d10 4s2 4p1, देखो 31 हो गया क्या, 10 और 28 31, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो पहले दो एलिमेंट हैं, इनके अंदर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ड्यू टू दीज इनर इलेक्ट्रॉन,
दैट इज ड्यू टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन आपके एस ऑर्बिटल में और पी ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं उनकी वजह से सिर्फ स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसके ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और ये जो एस और पी ऑर्बिटल होते हैं दे आर कॉम्पैक्ट इन नेचर, छोटे होते हैं साइज में, तो दे हैव ए बेटर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ होता है ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स इज मोर बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पैक्ट साइज। तो अब इसमें क्या होता है कि जो 3D इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आपके गैलियम के अंदर, दीज 3D इलेक्ट्रॉन्स हैव ए वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और उस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इस केस के अंदर गैलियम के अंदर जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा के बराबर होता है, मैंने बताया था। तो ये आपका कम हो जाता है डी इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए गैलियम का साइज एल्युमिनियम से थोड़ा सा कम हो जाएगा। नाउ इफ गो टू इंडियम टू थैलियम, यहाँ पे भी आप क्या देखेंगे कि एटॉमिक रेडियाई जितना बढ़ना चाहिए था, द इंक्रीज विच वी वर एक्सपेक्टिंग, दैट मच इंक्रीज इज नॉट ऑब्जर्व इन दिस केस आल्सो इंडियन एंड थैलियम। इसमें जाओगे तो आप क्या होता है कि थैलियम के अंदर जो है आपके एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट इट इज इवन पुअरर देन द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे साइज लगभग बराबर सा रह जाता है, और एल्युमिनियम से गैलियम पे जाने पे साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर। नाउ वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई की बात करें हम, सो वी कैन नॉट डिस्कस द वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई इन ए पीरियड। हम पीरियड में आयनिक रेडियाई की डिस्कशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण बता देता हूं मैं आपको। जैसे सोडियम है, ये मोनो पॉजिटिव आयन बनाता है। मैग्नीशियम इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड में आएगा वो डाई पॉजिटिव आयन आ जाता है। एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है। और अगर कार्बन के नीचे आप सिलिकॉन में जाओ तो सिलिकॉन जो है वो आयन ज़्यादातर बनाता नहीं है, अगर बनाएगा तो +4 में बहुत कम, रेयरली बनाता है। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस जो है ये -3 का आयन बनाता है, 3- फॉस्फाइड आयन। और उसके बाद अगर आप जाओगे सल्फर जो है -2 में बनाता है, क्लोरीन -1 में बनाता है। अब आप देख रहे हैं कहीं पे कैटायन बन रहा है, कहीं पे एनायन बन रहा है, कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। सो दैट विल गोइंग टू इफेक्ट द रेडियाई। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई इन ए पीरियड, वी डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई अमंग isoelectronic ions. We discuss it among isoelectronic ions. isoelectronic ions के अंदर बस आपने ये ध्यान रखना है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन थे 11 एटम में, एक लूज कर दिया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम आयन में, ठीक है। एल्युमिनियम ने 13 में से 3 लूज कर दिया तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इधर सल्फर, फॉस्फोरस, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 से ज़्यादा है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब इनके साथ क्या करेंगे, जैसे नाइट्रोजन है, अगर ये नाइट्राइड आयन बनाता है, N3- आयन बनाता है नाइट्राइड आयन जो, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इधर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड आयन बनाता है -2 में, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरीके से फ्लोरीन जो है फ्लोराइड आयन बनाता है, तो उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम किसका कंपैरिजन करेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन कौन से हो गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑल आर हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड फ्लोराइड आयन, all these ions have 10 electrons. So इनके केसेस में among the isoelectronic ions, ionic radii decreases among isoelectronic ions. Ionic radii decreases with increasing एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इनके अंदर जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आयनिक रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11,
मैं इनके एटॉमिक नंबर ऊपर लिख देता हूँ, उसके बाद यू कैन हैव एन आइडिया। ये एटॉमिक नंबर है 11, इसका था 12, 13, 7, 8, 9। तो इनका अगर हम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, इनके आयंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, तो सबसे कम साइज किसका होगा? सबसे कम आयनिक रेडियस होगा एल्युमिनियम का, देन दैट विल बी ऑफ मैग्नीशियम, देन सोडियम, देन फ्लोराइड, देन ऑक्साइड और देन नाइट्राइड। तो नाइट्राइड विल बी having the largest radii, whereas aluminum among these ions will be having the lowest atomic ionic radii, sorry। तो among isoelectronic ion आपने ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक रेडियस डिक्रीज करेगा। और अगर हम किसी ग्रुप में बात करेंगे तो ग्रुप में भी आपने ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में, क्योंकि उनके एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब दे फॉर्म आयंस विद डिफरेंट चार्जेस। तो जब ग्रुप में हमने कंपेयर करना है तो ग्रुप में भी हमने कंपेयर करना है इन ए गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएशन इन ग्रुप। तो ग्रुप में अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो जो अगर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, तो ये सब के सब +1 बनाते हैं आयन। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +1 में ये आयंस बना रहे हैं। तो इनके अंदर तो सीधा सा जो एटॉमिक रेडियस में था वही फार्मूला है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ईच टाइम ए न्यू एनर्जी शेल विल बी एडेड, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज विल बी काउंटर बैलेंस्ड बाय द इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इनके अंदर तो सीधा सीधा एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा? इंक्रीज। आयनिक रेडियाई आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। लेकिन अगर हमारे पास कहीं पे ऐसे ग्रुप आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये हैं, तो ये दोनों N3- बनाते हैं, P3- बनाते हैं। ये As+3 में बनाता है, +3, बिस्मथ +3। तो अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो गई। तो हम क्या कहते हैं? अमंग इन ए गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ये सब के सब +3 में बना रहे हैं, तो इन ए गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो हमारा आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगा। फिर तो हमारा आयनिक रेडियाई बढ़ेगा, सेम सिचुएशन है। अदरवाइज जैसे इन दोनों का कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं बनाते ट्राई नेगेटिव आयन, ये फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई नेगेटिव आयन बनाता है, तो इन तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, व्हेन वी डिस्कस द वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई इन ए ग्रुप, then it should be discussed with a particular oxidation state. Oxidation state of all the ions should be the same for comparison of ionic radii in a group. So this is about the first periodic property, that is atomic and ionic radii. The second periodic property, atomic periodic property, is that is called ionization enthalpy. That is ionization enthalpy. Ionization enthalpy और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कई जगहों पे वर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको मिलेगा, तो मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी यहाँ पे साथ डिस्कस करूँगा, एंड आई विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू, although they are one and the same thing, a little difference is there. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? मेरे पास मान लीजिए सोडियम एटम हो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और ये गैसियस स्टेट में हो। किस में हो? गैसियस स्टेट में। और ये अकेला हो, एक ही एटम, ऑल अलोन। इसको हमने एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उस एनर्जी से आपका इसका वैलेंस शेल का जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, सो दिस इज द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन द सोडियम एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये जो एनर्जी हमारी यूज हुई, दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड योर आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस विल बी कॉल्ड योर आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब दिस एनर्जी वी हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. नाउ वी कैन आल्सो इजेक्ट आउट दिस इलेक्ट्रॉन बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. हम क्या करें, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करें, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में एटम को रखें और उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम क्या करें, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करें. तो जिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मिनिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से, उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे. तो डिफरेंस बिटवीन द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ओनली द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन. तो इसको जो मैंने लिखा है, इससे अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject, or you can say remove, most loosely bound electron from valence shell of an isolated gaseous atom. Here this word is very important. Isolated gaseous atom. ये एटम आपका आइसोलेटेड का मतलब अकेला होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा है जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम आ रही है. अगर ये सोडियम गैसियस एटम में नहीं है, मान लीजिए सोडियम मेटल होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, अगर हमने मेटल सॉलिड ले ली तो शुरू में जो एनर्जी देंगे वो क्या करेगा, इसको जो शुरू में दी हुई एनर्जी है वो इसको लिक्विड में बदलेगा, फिर एनर्जी लगेगी, देन इट विल चेंज टू गैसियस स्टेट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो ये जो एनर्जी हमने दी इसको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदलने में, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के तो काम आई नहीं, ये तो हमारी फिजिकल स्टेट ऑफ द एटम बदलने के काम आई. सो दिस इज नॉट द आयनाइजेशन एंथैल्पी. और गैसियस स्टेट में भी फिर एटम अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए भी एनर्जी लगेगी. ठीक है, तो वो सारी एनर्जी जो है वो दैट इज एनर्जी इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड इन रिमूविंग द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन. इसलिए ये सारी एनर्जी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी का हिस्सा नहीं है. इसलिए जरूरी है कि हमारा एटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड भी होना चाहिए, गैसियस भी होना चाहिए. ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो एनर्जी यूज की इसको हम कहते हैं IE1 आयनाइजेशन एंथैल्पी. दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. आप एटम में से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और वो हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी. क्यों ज़्यादा होगी? मान लीजिए अब ये सोडियम से सोडियम प्लस बन गया, अब इसमें से अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमने एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज में से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. सो दैट विल रिक्वायर मोर एनर्जी, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी वो. इसी तरीके से तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी. तो फर्स्ट के बाद वाली जितनी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उनको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. दे आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, और उनको हम क्या कहते हैं, IE2, IE3. और ये ध्यान रखना, IE1 इज ऑलवेज लेस देन IE2 एंड इट इज लेस देन IE3, क्योंकि जब ये बन जाएगा तो डाई पॉजिटिव आयन बन जाएगा, इसको निकालने, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और फोर्स लगाना पड़ेगा. आपने ये ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी एटम की वो डिपेंड करेगी कूलम्बिक फोर्स exerted by the nucleus on the valence electron, which is given by this formula. इस फोर्स पे डिपेंड करेगी. अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और ये फोर्स कम है तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी. So now we are going to discuss about the factors, various factors on which your ionization enthalpy or ionization potential develops. And depends, sorry. So your ionization enthalpy that depend on following factors affecting ionization enthalpy. In all there are following factors. First one is called
atomic radius. First one is atomic radius. Second one is nuclear charge. Third one is shielding or screening effect. Shielding or screening effect. Fourth one is penetration effect. And fifth one is your electronic configuration. Electronic configuration. These are the 5 factors. ये फैक्टर 5 हैं. बस आपने इन फैक्टर्स का इफेक्ट देखना है ऑन दिस फोर्स. आपने इस फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है इन 5 फैक्टर का, सिर्फ वो देखना है. उसी हिसाब से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन डिपेंड करेगी इन 5 फैक्टर्स पे. एटॉमिक रेडियस मैंने क्या कहा था? एटॉमिक रेडियस मैंने कहा था न्यूक्लियस से लेके जो इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करना है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन का, ये डिस्टेंस, दिस इज योर रेडियस ऑफ द एटम. इसका मतलब क्या हुआ? इफ योर एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेस, दैट मीन्स योर आर विल इंक्रीज. आर बढ़ने का मतलब दिस आर विल इंक्रीज, सो फोर्स विल बी डिक्रीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट. क्योंकि वहां पे नीचे क्या है? आर स्क्वेयर है. अगर रेडियस आपने डबल कर दिया तो फोर्स 1/4 हो जाएगा. 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4. तो फोर्स विल इमीडिएटली डिक्रीज. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी. तो मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं इन फैक्टर्स का इफेक्ट. आयनाइजेशन एंथैल्पी आई एम राइटिंग इट एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, और अगर एटॉमिक रेडियस घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी. ठीक है. दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज में ये जेड होता है यहां पे इसके ऊपर. जेड इज द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड ईच प्रोटॉन हैज ए 1 यूनिट चार्ज. तो हम ये कह सकते हैं ये चार्ज जेड. यहां पे जो जेड लिखा मैंने वो मान लीजिए आपका Q1 है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. इसका मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका Q1 बढ़ेगा. अगर मैं इसको Q1 मानूं तो Q1 बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? फोर्स विल आल्सो इंक्रीज. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये. तो इसका मतलब यहां पे फोर्स अगर डबल हो, ये न्यूक्लियर चार्ज डबल हो गया तो आपका फोर्स भी डबल हो गया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो गई? बढ़ गई. तो हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. ये न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज घटेगा वो घटेगी. और न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट के लिए यहाँ पे जेड का मतलब आपने जेड इफेक्टिव लेना है. जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा. मैं आपको ये सिग्मा कैलकुलेट करना बताऊंगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्मा. स्लेटर रूल से कैलकुलेट करते हैं इसको. वी विल बी डिस्कसिंग इट बट ए बिट लेटर. शील्डिंग इफेक्ट है. ठीक है. शील्डिंग इफेक्ट इज मेजर ऑफ दिस सिग्मा. इसका मतलब जितना आपका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो जेड बढ़ेगा. जेड बढ़ने का मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम, मतलब फोर्स कम. ये Q1 कम हो गया तो फोर्स कम हो गया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? डिक्रीज. तो हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट. अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटी, और अगर शील्डिंग इफेक्ट घटा तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी. ये तो सीधे सीधे ये हैं. इसके बाद ये जो पेंट्रेशन इफेक्ट है, पेंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए. पेंट्रेशन इफेक्ट, ये हमारा न्यूक्लियस है. हमारे किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हों, क्योंकि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करती है. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑफ द एनर्जी शेल हैज ए टेंडेंसी टू पेंट्रेट इनटू द इनर शेल क्लाउड. वो अपने से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड में घुसने की कोशिश करते हैं, सो दैट
द फोर्स ऑन दीज इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर। अब ये कितने ज़्यादा पेंट्रेट करेंगे उतना ये न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे, और जितना न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे उतना इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेंट्रेशन इफेक्ट। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेंट्रेशन इफेक्ट? पेंट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर है S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। इसका कारण ये है कि S ऑर्बिटल सबसे छोटा होता है साइज में। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें घुसने की कोशिश करेंगे तो ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो अगर ये ऑर्बिटल छोटा है तो यहाँ के इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस कम लगेगी उस ऑर्बिटल पे, तो ये ज़्यादा पेंट्रेट कर जाएंगे। अब क्योंकि S ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा होता है, सो दैट कैन पेंट्रेट टू ए ग्रेटर एक्सटेंट इनटू द इनर शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको बताइए कि हाफ फील्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, एंड इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल it will be more difficult to remove electron from that electronic configuration, so your ionization will enthalpy will increase. So these are the 5 factors and how they affect the various how they affect the ionization enthalpy that we have discussed. We will be discussing about the variation in the periodic table, that is variation in a period and in a group, in the next lecture, because today we are running short of our time for the lecture. Thank you very much.